Hello friends, welcome back again my to class. So friends, today we are going to discuss class 8 math. So this is your book which I am going to teach you. Okay, so in this video, firstly we will discuss about the first chapter of your book, that is rational number. So in this video we will discuss about rational number, type of rational number, standard form of rational number, properties of a rational number. So here Rn, it means it is a rational number. Rn, it means rational number on number line. It means how to represent any rational number on a number line. Okay, next is comparison and second is operation. Don't worry, it's not your operation, this is operation of a rational number. Okay, so let's start. Firstly we discuss about what is a rational number. So any number, if we can write in the form of p by q. What I'm saying that if I'm taking, just think, I'm taking a number r. I'm just taking a number is a r. Now I can write this number in the form of r by 1. Can we write this number? Yeah, definitely. So if I can write this number in the form of r by 1, so we can also compare this p by q. Okay, so if I'm just saying that one thing, if any number, if we can write any number in the form of p by q and where p and q are both are integers and q is not equal to 0, so that is a rational number. It means ऐसी कोई भी नंबर जिसको हम p by q के फॉर्म में लिख सके, ठीक है, p by q के फॉर्म में लिख सके और p और q बोथ आर इंटीजर, दोनों इंटीजर हो और q की वैल्यू क्या 0 के इक्वल नहीं हो. तो लेट्स सपोज वी आर टेकिंग अ नंबर r. सो r को हमने क्या लिखा, r by 1. नाउ जस्ट कंपेयर विद दैट with p by q. So this is value p by q. Now r is a number, here r is a number, anything, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 से लेके इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर हो सकता है r यहाँ पे हमारा, ठीक है. तो हमने क्या किया, p by q के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. नाउ हियर p इज इक्वल टू r एंड q इज इक्वल टू 1. p की वैल्यू r है एंड q की वैल्यू 1 है. हियर बोथ आर इंटीजर. अगर इनकी बात करें तो बोथ इंटीजर्स, बोथ इंटीजर्स. ओके, तो दोनों क्या है, इंटीजर्स हैं. और यहां पे आप q की वैल्यू देखो, वो क्या है, 0 नहीं हो रही है. तो सिंपल से इसका डिफिनेशन आता है, इसका डिफिनेशन देखिए क्या होगा. इफ एनी नंबर कैन बी रिटन in the form of p by q where p and q are integers and q does not equal to 0. ओके, यानी ऐसी कोई भी नंबर जिसे हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, कैसे, p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं और q की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए. बहुत इंपॉर्टेंट है कि q की वैल्यू क्या हो, 0 नहीं होनी चाहिए. ओके, हाँ, वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर रेशनल नंबर. इन दिस वीडियो वी विल ओनली डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन. ओके, क्या क्या पॉइंट हमें पढ़ना है हम बस उस पर डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट पार्ट विल बी योर, नेक्स्ट पार्ट इज योर एक्सरसाइज. सो इन every part we will discuss each exercise. okay, so second part में क्या होगा, एक्सरसाइज 1.1 आएगा, 2 पार्ट में 1.2, थर्ड पार्ट में 1.3. ओके, सो ये हो गया रेशनल नंबर क्या होता है, हम वो जान गए. नाउ दिस इज टाइप ऑफ दिस रेशनल नंबर. रेशनल नंबर के टाइप्स कितने होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं रेशनल नंबर, वो जानेंगे हम. ओके, इफ वी टॉक अबाउट इस टाइप, अगर हम रेशनल नंबर के टाइप की बात करें तो जनरली वी गेट 2 टाइप ऑफ रेशनल नंबर. विच वन, फर्स्ट इज दैट पॉजिटिव
rational number. One is that positive rational number and second is that negative rational number. So here we get two rational number. Which one? First is that positive rational number and second is that negative rational number. What is that? Let explain me. So just listen. If I write 7 by 4, 2 by 3, 9 by 6, 8 by 4, I don't write this one because 3 by 4 just write here, and 2 by 3 simply 1, 2, 3, 4 etc. So these number are known as a rational number in a positive form. So ये जो नंबर है क्या होंगे? रेशनल नंबर होंगे, किसमें? पॉजिटिव फॉर्म में रेशनल नंबर होंगे आपके, ठीक है। अब नेगेटिव की बात कर लेते हैं। नेगेटिव रेशनल नंबर कौन से होंगे? तो बच्चों जो नेगेटिव रेशनल नंबर होंगे वो होंगे आपके -2 by 3, -4 by 7, -8 by 5, -3 by 7, -2, -3, -4, -8 etc. It means any number if come with a sign of minus, so that will be definitely in a नेगेटिव रेशनल नंबर। ओके, तो ये हो गया हमारा टाइप हो गया। टाइप हमारे दो टाइप के होते हैं रेशनल नंबर, कौन कौन से? एक हमारे पॉजिटिव रेशनल नंबर, दूसरा हमारा नेगेटिव रेशनल नंबर। ये क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, डेफिनेटली नहीं होना चाहिए। नाउ हमने ये देख लिया कि रेशनल नंबर क्या होता है, वो भी हमारा क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। ठीक, चलिए अब बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर का मतलब क्या हुआ? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर। सो इट मींस स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? यानी एक ऐसा फॉर्म जिसमें हम रेशनल नंबर को एक ऐसे वे में लिखे जो देखने में भी अच्छा लगे, ठीक है, और क्या हो, देखिए मैं बताता हूं। हम वी नो दैट कि जो रेशनल नंबर होता है वो होता है p बाई क्यू के फॉर्म में, ठीक है। रेशनल नंबर किसमें होता है? p बाई क्यू के फॉर्म में, और हम जानते हैं p एंड q बोथ आर इंटीजर्स। क्या होता है? इंटीजर्स होता है, ठीक है। और एक और चीज जानते हैं कि q क्या होना चाहिए? q डज नॉट इक्वल टू 0, q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। और वन मोर थिंग, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो रेशनल नंबर में जो डिनोमिनेटर होता है, देखिए दो चीज मैं लिखता हूं, जैसे यहाँ पे मैंने 4/5 लिखा, 4/5 मैंने यहाँ पे राइट किया है, तो यहाँ पे ये जो है हमारा ये है न्यूमिनेटर और ये जो हमारा ये क्या है? डिनोमिनेटर। तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में जो मेन इफेक्ट इसमें पड़ेगा वो क्या होगा? हमें डिनोमिनेटर ऑलवेज ग्रेटर देन, इट मीन्स सिंपली हम लिख सकते हैं इज ग्रेटर देन न्यूमिनेटर। इट मीन्स जो डिनोमिनेटर होगा वो हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। किससे? न्यूमिनेटर से बड़ा होगा। क्यों ऐसा होगा? देखिए सिंपली अगर हम कोई रेशनल नंबर लेते हैं, जैसे 4/5 लेते हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट कितना आएगा? 8 आएगा। यानी जो वैल्यू आनी चाहिए वो 1 से क्या होनी चाहिए? लेस होनी चाहिए हमेशा। जो भी हमने अगर हमने कोई रेशनल नंबर लिया है तो जो उसकी वैल्यू होगी वो डेफिनेटली कितनी आनी चाहिए? 1 से लेस आनी चाहिए हमेशा। देन वी कैन से दैट द रेशनल नंबर इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, नाउ द प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। अब प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, इट मींस प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर में क्या आएगा? देखिए हम इसमें कई प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। क्या होंगे? पहले एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का। स्पेशली 4 फंक्शन के लिए हम इसमें क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज के पढ़ेंगे। तो पहले इसकी प्रॉपर्टी ये है कि प्रॉपर्टी 1 की बात करें
प्रॉपर्टी 1 की बात करें कि इफ वी ऐड रेशनल नंबर विद अ रेशनल नंबर सो वी गेट अ रेशनल नंबर। इट मींस अगर हम दो रेशनल नंबर को ऐड करते हैं, ठीक है, मैं इसको लिख के दिखा देता हूं। हमारी ये प्रॉपर्टीज होगी प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 3, प्रॉपर्टी 4, प्रॉपर्टी 5, कौन कौन से में हम इसके बारे में इंडिविजुअली बात कर लेते हैं। तो जैसे देखिए प्रॉपर्टी 1 की बात करें तो प्रॉपर्टी 1 क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इट मींस देखिए वर्ड से समझ में आ रहा है कि हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, एडिशन करना है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन की बात करें बच्चों तो देखो क्या हो जाएगा, इट मींस हम ये बोल दें कि अगर एक रैशनल नंबर को a बाई बी है, ठीक है, इसमें ऐड करते हैं b बाई सी, तो जो रिजल्ट होगा सपोज द रिजल्ट इज e बाई एफ, इट ऑल्सो अ रैशनल नंबर। इट मींस अगर दो रैशनल नंबर को ऐड करते हैं, जस्ट सिंपली इफ वी ऐड टू रैशनल नंबर सो रिजल्ट इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। सो दैट function या that property is known as closure property of a addition. Okay, now discuss the second property. What is the second property? Commutative property of addition. It means if we add three numbers, simply देखो हमने ऐड किया 4 + 5 + 6, हमने क्या किया, पहले इसको ऐड किया 4 5 6 11, अब इसको ऐड किया, कितना आ गया 15। नाउ अब क्या करेंगे, 4 + 5 + 6, अब 4 5 कितना किया 9 + 6 और 9 6 कितना हो गया 15 हो गया। नाउ इट मींस इन दिस प्रॉपर्टी कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इसे इफ वी चेंज द प्लेस ऑफ रेशनल नंबर, ओके, सो इट्स नॉट एनी इफेक्ट ऑन द रिजल्ट। इट मींस क्या कि अगर हम रेशनल नंबर का प्लेस चेंज कर देते हैं, रेशनल नंबर जो हमारा प्लेस है उसको हम चेंज कर देते हैं, तो ये इफेक्ट नहीं डालेगा, किस पे नहीं डालेगा, जो रिजल्ट होगा उस पे इफेक्ट नहीं डालेगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज दैट एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन इट मींस व्हाट, इसको मैं इरेज कर देता हूं। इट मींस अगर हम उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, आप इसको देख लीजिएगा, जो लास्ट मैंने कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन बताया था वो एक्चुअली एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन है, ठीक है, वो क्या है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। इसमें क्या होता है, इस एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन में जो चीजें मैंने बताया कि अगर 4 + 5 + 6 करेंगे और 4 + 5 + 6 करेंगे तो रिजल्ट जो आता है वो क्या होता है, इक्वल होता है, रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। एंड कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में क्या होता है, जब इसमें अगर हम कोई एक नंबर ले लेते हैं जैसे 4/5 + 6/3, तो हम यहाँ ऐड कर सकते हैं 6/3 + 4/5। इस केस में भी क्या होगा, रिजल्ट इक्वल आएगा। तो कह सकते हैं दोनों प्रॉपर्टी सेम है, बहुत ज़्यादा उसमें डिफरेंस नहीं है। नाउ डिस्कस अबाउट व्हेन जीरो एडेड। अब हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी क्या आता है कि जब हम उसमें जीरो ऐड करते हैं, तो देखो बच्चों अगर किसी भी रेशनल नंबर में या फिर किसी भी नंबर में आप जीरो ऐड करते हो, सपोज आपके पास कितने हैं, आपके पास 10 रुपये है, यहाँ देखिए 10 रुपये है आपके पास, ठीक है, आपको क्या हुआ 2 रुपये और मिल गया, तो 10 और 2 रुपये ज्वाइन हो कितना बन गया 12 रुपये हो गया, ठीक है, 10 रुपये पहले था 2 रुपये बाद में मिला, ज्वाइन हुआ 12 रुपये बना। बट सपोज अभी आपके पास कितना है, अभी आपके पास केवल 10 रुपये है, ठीक है, आपने ज्वाइन कितना किया 0 रुपये ज्वाइन किया, एक बड़ा सा जीरो ज्वाइन किया, क्या किया ज्वाइन किया, जीरो ज्वाइन किया, तो 10 और 0, अब आपके पास कितना बचा, डेफिनेटली 10 ही रुपये होगा और इसमें ऐड कुछ नहीं होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग कह रहा है कि अगर किसी रेशनल नंबर में जीरो ऐड किया जाता है तो वो क्या होता है, सेम होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो चेंज। ओके, नाउ इनवर्स की बात करते हैं। इनवर्स में क्या है कि यहाँ पे क्या कहता है कि अगर किसी नंबर का इनवर्स हम उसमें ऐड करते हैं, किसी नंबर का इनवर्स हम उसमें ऐड करते हैं तो क्या होगा, जैसे सपोज कीजिए एक हमने नंबर लिया, क्या नंबर लिया 4/5, अब 4/5 का इनवर्स क्या होगा -4/5। ओके, 4/5
inverse of this number 4 by 5 is minus 4 by 5. So what will you get when you add these two number? हमने क्या किया, दोनों नंबर को ऐड किया, तो जस्ट लुक एट देयर, मैं यहां पे इरेज करता हूं, ऊपर देख लीजिए, एक नंबर था हमारा 4 by 5, हमने इसका इनवर्स लिया, माइनस 4 by 5 बना। नाउ हम इनको ऐड कर रहे हैं, तो 4 by 5 प्लस minus 4 by 5, when we open the bracket, so we will get minus 4 by 5, because plus minus minus. Now 4 by 5 cancel 4 by 5, so your result is 0. So you say that if any rational number, if we add any inverse of any rational number, so resultant is always 0. So this is the property of a rational number. अब क्या करना है, हमने क्या क्या देख लिया, हमने देख लिया रेशनल नंबर क्या है, टाइप ऑफ रेशनल नंबर देख लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर. नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज रेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन, हाउ टू रिप्रेजेंट रेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन. चलिए स्टार्ट करते हैं इसको. ओके स्टूडेंट, टेल मी वन थिंग, एवरीवन नो अबाउट द रेशनल नंबर. नाउ and number line, about number line, just look at, if I draw a line, is not straight, I am trying to draw a straight line, just assume that it is a straight line. Okay, just take this is point 0, so 0 से इस साइड जाएंगे, मतलब 0 से राइट हैंड साइड जाएंगे, दिस इज राइट हैंड साइड and this is left hand side. Okay, when we go this side it always positive, and when we go this side is always negative. So please understand this theory about positive and negative. So here the value is 1, this value is 2, this value is 3, this value is 4, this value is 5. Now this side the value is minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Okay student, if I say please represent 4 on number line, ठीक है. अभी मैंने बोला कि बच्चों क्या करो, 4 को रिप्रेजेंट करो, कहां पे रिप्रेजेंट करो, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो. आप बहुत खुश हो जाओगे, अरे सर ने क्या दे दिया, 4, बहुत इजी है, दिख रहा है यहाँ पे, आप तुरंत यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दोगे 4 कि सर ये रहा आपका 4, कहाँ पे, नंबर लाइन पे. ओके, मैंने बोला ठीक है चलो बहुत अच्छी बात है. आप वो देखो -4 कहाँ है, आपने बोला सर बहुत इजी है, कहाँ पे, ये रहा सर -4. ओके, ये भी बात समझ में आई. ओके, अब थोड़ा सा क्वेश्चन को टिपिकल बनाते हैं. कैसे बनाते हैं क्वेश्चन को टिपिकल, यहां जो 4 था, अब हमें रिप्रेजेंट करना है 4 by 5. क्या रिप्रेजेंट करना है, 4 by 5. तो अब देखो बच्चों, जो 4 by 5 है, अब उसे कैसे रिप्रेजेंट करोगे नंबर लाइन पे. थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बहुत इजी है. देखो कैसे करना, क्या है, सबको डिवाइड कर दो 5 से. डिवाइड कर दिया. देखो मैंने ऐसा क्यों किया, माइनस का था इसलिए मैंने माइनस वाले टर्म को ही डिवाइड किया. अब यहाँ पे देखो -1 by 5, -2 by 5, -3 by 5, -4 by 5, तो यहाँ पे जो -4 by 5 है वो नंबर यहाँ पे आ गया. इफ आई से रिप्रेजेंट -3 by 2, -3 by 2, okay is not asking this one, 2 by 3, -2 by 3. तो हाउ टू रिप्रेजेंट -2 by 3 ऑन अ नंबर लाइन. सिंपली क्या करना है, अब -2 by 3 की बात करें तो अब यहाँ पे जो 5 से डिवाइड हो रहा था, अब किससे होगा, 3 से. तो 3, 3, 3, 3. So this will be become your answer, -2 by 3. So बहुत इजी है किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, इसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा. ठीक है, तो अब बात करते हैं, ये हो गया हमारा. अब कंपैरिजन की बात करते हैं कि कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है, कौन सा रेशनल नंबर छोटा है. तो ये भी बहुत इजी चीज है, किसी भी नंबर का कंपैरिजन करना. ओके, तो कंपैरिजन कैसे करते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. देखो कैसे कंपैरिजन करेंगे. चलो
मैं सिंपली नंबर ले लेता हूं कि चलिए 4 और 4 में बताओ बेटा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। तो सर आप बोलोगे सर 4 4 सेम नंबर है, ये इसमें तो ना तो कोई बड़ा है ना तो कोई छोटा है, सेम है डेफिनेटली, तो हम तो इन्हें इक्वल बोल देंगे। चलिए अब मैं बोलता हूँ चलो बेटा 4/3 और 4/3 में कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। तो आप बोलोगे सर दोनों सेम है, दोनों में 3 से डिवाइड हो रहा है, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या है दोनों का ही 3 है, तो ये भी नंबर क्या सेम है, तो ये भी क्या होंगे इक्वल होंगे, ये भी क्या होंगे इक्वल होंगे। नाउ अभी थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को टिपिकल करने जा रहा हूँ ना। अब मैंने बोला -4/3 और 4/3 में कौन बड़ा कौन छोटा। अब बताओ, तो सिंपली सी बात है, पहले तो आप नंबर चेक करोगे, दोनों नंबर सेम है, अब साइन चेक करना, क्या चेक करना, साइन चेक करना कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो लुक एट दिस वन नंबर, दिस नंबर इज -4/3, व्हाट इज मीन दैट, ये -4/3 ये +4/3 है। अगर मैं नंबर लाइन पे इसको शो करना चाहूँ तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो गया 0, यहाँ पे आपका 1 जाए, नीचे लिखिएगा 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा, 4 जाएगा, और यहाँ पे आपका -1 -2 -3 -4 जाएगा। ओके, now is divided by 3, so this will be 3 3 3 and 3, so this is, if we represent -4/3 तो -4/3 कहाँ है, यहाँ है। ओके, 4/3 वो कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। तो अभी देखो हमेशा ये पॉजिटिव वाला टर्म है कि नहीं है, डेफिनेटली है, तो 0 से यहाँ जाने के में और यहाँ से यहाँ आने में बहुत ही टाइम लगेगा, ठीक है, डेफिनेटली बहुत टाइम लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसको यहाँ तक आने में कम टाइम लगेगा। पहले देखिए, ये तो पहले 0 होगा, उसके बाद 4/3 होगा, ये तो ऑलरेडी 4/3 है, तो क्या हो जाए, सिंपली हम बोल देंगे यस 4/3 इज अ ग्रेटर देन। ये तो सिंपल से था, आप सभी लोग बता लोगे। आगे क्वेश्चंस में इससे थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे, उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए ये चीज हो गया, अब आगे की बात करते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है कि ऑपरेशन। अब देखिए ऑपरेशन इसमें कई टाइप के होंगे, एडिशन का होगा, सब्ट्रैक्शन का होगा, मल्टीप्लिकेशन का होगा और डिवीजन का होगा। तो एक हम एक जनरली ले लेते हैं, फिर क्वेश्चन में तो हम बात करेंगे इस पे। तो चलिए एक हम ऑपरेशन ले लेते हैं, एडिशन का ऑपरेशन ले लेते हैं। अब जैसे सिंपली हमें 4/3 और 4/3 को ऐड करना है, तो देखिए हम दो टाइप का एडिशन पढ़ेंगे। एक व्हेन डिनोमिनेटर मीटर्स आर सेम, एक ऐसा एडिशन पढ़ेंगे जिसमें डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, ठीक है। दूसरा हम पढ़ेंगे व्हेन आर डिफरेंट। एक दूसरा मेथड है व्हेन डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, यानी जब डिनोमिनेटर्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। बहुत इजी है, देखिए क्या करेंगे, जब भी डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, तो ये क्वेश्चन करना बहुत इजी हो जाता है। देखिए कैसे, सपोज 9/7 प्लस 8/7 कर लो या 6/7। अब यहां पे आप देख सकते हो डिनोमिनेटर क्या है, 7 7, इट मीन सेम है। इफ द डिनोमिनेटर इज सेम, सो जस्ट राइट हियर 9 + 6 and by 7, इट मीन्स आपको क्या करना है, just write once time denominator and whatever written on the numerator just write as well as. So 9 6 15/7, so answer is 15/7. Now when denominator is a different, जब denominator क्या हो, different हो, तो क्या करोगे आप, जैसे 9/7 पहला नंबर था, अभी क्या हो गया 2/3 हो गया। Now here what you get, डिनोमिनेटर इज डिफरेंट, डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है, तो क्या करोगे आप एलसीएम लोगे, एलसीएम, ठीक है। एलसीएम क्या है, अब पुराना मेथड है, अब आप एलसीएम नहीं लोगे, अब थोड़ा सा आप लॉजिकली वर्क करोगे। जैसे यहाँ पे नंबर गिवन है, क्या गिवन है, 9/7 प्लस 2/3, सो जस्ट सिंपली व्हाट यू हैव टू डू, 3 मल्टीप्लाई विथ 9 and 7 मल्टीप्लाई विथ 2 and 7 मल्टीप्लाई विथ 3, इट मीन्स व्हाट, 3 का मल्टीप्लाई 9 से
7 का मल्टीप्लाई 2 से और 7 का मल्टीप्लाई 3 से. So what you get, just look at here, 9 into 3 plus 7 into 2 by 7 into 3. So you will get 9 3s are 27, 7 2s are 14 or 7 3s are 21. I'm just writing answer here. So 7 4 11, 2 1 3 and 4 by 20. So this will be your answer. So I'm just stop the class here of introduction class. So in the next video, that was the part 2 of this rational number, we will discuss exercise 1.1. So thank you class, have a nice day, see you in next video. If you have any query related to this question, just comment below, and don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Have a nice day, see you tomorrow, keep smiling, keep studying, stay home, stay safe.